And good evening, everyone. Principal Sir, Pranay Sir, and Garima Ma'am, and each and every present in the meeting. Garima Ma'am, my question is with you. There are three questions basically, because the rest of them you have already answered. So it is obviously the syllabus is very vast, and no one can prepare each and everything. So what are the main subjects that you give preference? And the second question is, how will we really know that what is the correct time to appear in the exams? Because whenever we go to the, we decide to appear in the exam, there will be a nervousness. So what was the point of time for you that you decided that you are going to finally appear for the UPSC? And my third question is it important to have a backup plan if while preparing for UPSC? Because it's obviously uncertain that we will be able to clear it in the first or second attempt. That's it. Thank you, Ashika. Thank you. The first thing you asked about is what are the subjects to focus upon when you're preparing for UPSC, right? Okay, so whenever you're preparing for UPSC, I've told you that there are various subjects which we are attempting. Around 9 papers you have to give in mains. So the most important is that you prepare for your mains first. Whenever you want to give an exam, you have to prepare for your mains exam first. Generally, people do the mistake of preparing for prelims first. See, prelims is going to give you a qualification to sit in the mains exam. But mains exam is something which is going to give you the rank, which is going to give you the post or whatever services that you're going to get. It is going to make, like, the selection will be based on your mains, not on your prelims. So what happens that we give too much importance to prelims and too less to mains. So a lot of people, because 10,000 people will be selected for prelims. Out of that, 3,000 people will be selected for mains. And out of those 3,000 people, in interview, 180 will only be selected for IS, and other people will be selected for other services, which is 1,000, generally average, I'm saying 1,000 seats are available. So you have to be very careful when you're preparing. You first have to prepare for your mains, your optional, essay and ethics. These are the subjects which give you an edge over other people, and you can't ignore. When you're giving a competitive exam like this, you can't ignore any side. So you have to find your strengths, whichever you like more, whichever you like studying more, whichever is your strength, you develop on them. Your weakest point should be the least strong point, not the weak point. Because we were 12 people on the same marks in the list. That kind of competition exists in this exam. And giving competition does not mean that it has to be that you lose yourself also in this. But sometimes you have to give 1 year, a very long time, continuously to prepare. So that kind of thing has to come from your planning. Which subjects you're going to focus, which subjects you're not going to focus. What was your second question? Your second question was? Time. What is the correct time for appearing? Yeah, the correct time for appearing for UPSC. See, it depends on you. My batchmate from college, me and Tina Dabi, everybody must know her name generally. She appeared just after the exam, just after her college exams, which is graduation only. But I decided to do post-graduation because I thought that I am not yet mentally ready and I need more preparation, I need more exposure. Depending on your resources, depending on your mental strength, depending on your circumstances, you have to choose. If you are very clear that you have to give, and that maturity has to come. Some people have that maturity very early in their lives. Some people take time. And there's nothing wrong about it. 1 or 2 years, if you go above and beyond, it doesn't matter. Believe me, you are very young. You have a very long life ahead. And I can get selected in 1 year of preparation. Somebody might take 5 years of preparation. It is not about the capability. It is about the resources that you are getting. It's about the a little bit of chances regarding your health, your location, whether you have accessibility. All those things will also matter. Whether you're doing the right thing at the right time with the right luck. And luck, I mean, is 1% part of it. 99% is whatever you're planning. So you should be confident enough to give this exam. I told you honesty is a very important part. Where you have to be honest to yourself when you prepare for UPSC or for any other competitive exam. You're not doing it for your parents or anybody. I'm telling you again, it is very easy to say that, when parents are not looking, I'm not looking at my book.
It's very easy to do that. So you have to have that ईमानदारी होनी चाहिए अपने करियर को लेके, अपनी उसको लेके कि आज मुझे पढ़ना है तो यही पढ़ना है. So जब वो मेच्योरिटी अगर आप में आ जाए, that is the day you are ready to give exam. Anyways, you can't give till 21 years. You have to give after 21. So graduation is a must. मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ लोगों को कि आपको अच्छा लगता है उस करियर के लिए आप पहले पढ़ाई करें, उसके बाद में आप यूपीएससी की तैयारी करें. एवरेज जो एज है जो भी यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनका 28 इयर्स रहता है. मैं यंग सेट में थी मेरे पूरे बैच के. मैं 24 पे सेलेक्ट हो गई, 23 पे मैंने प्रिपरेशन किया है. सो ये डिपेंड करता है. 21 पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बनते हैं, बट आपके अंदर वो मेच्योरिटी होनी चाहिए. क्या आप एक साल बैठ के एक जगह में एक कमरे में बैठ के सोलो पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं? द डे यू डिसाइड टू डू दैट, क्या आप अपनी उस तरीके से जवाबदारी ले पाएंगे अभी कि नहीं? और यू नीड मोर टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा और करियर देखना, आई वांट टू डू दिस डिग्री. आपको जो भी डिग्री करनी है, आपको जो भी एजुकेशन करनी है, आप कंप्लीट करिए, उसके बाद में आप यूपीएससी का अटेम्प्ट लीजिए. ये मैं एडवाइस सबको देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार लोग होता है कि मास्टर्स करना होता है लेकिन बिकॉज ऑफ यूपीएससी दे स्किप देयर प्लान्स. यूपीएससी बहुत अनसर्टेन होता है. कुछ लोग डिपेंड करता है, कुछ लोग सेलेक्ट जल्दी भी हो जाते हैं, कुछ लोग बाद में भी होते हैं. यू हैव टू प्लान योर दिस थिंग. इफ यू वांट टू गो फॉर इट आफ्टर ग्रेजुएशन, स्टार्ट डूइंग इन योर थर्ड ईयर ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन. स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स एंड यू कैन डू. योर थर्ड क्वेश्चन. Yeah, I would also like to pitch in. There are two extremes while giving these extreme sets while giving these exams. The first is graduation में जो बच्चे होते हैं like third year or last year पे, so without preparing they start thinking that पहला अटेम्प्ट दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो बाकी बहुत यूपीएससी में बोलते हैं कि पहला अटेम्प्ट भगवान को दे दो, जैसा आया वैसा तुक्का लगा तो लग गया, नहीं तो बाद में देखते हैं. तो पहला एक्सट्रीम, इट इज टू अर्ली. और सेकंड सेट जो होता है एक्सट्रीम में, वो देखते हैं कि पहले पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, फुल रिवीजन कर लेते हैं, एकदम जीएस में मेरे आंसर्स होने चाहिए, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा. तो उनका भी नंबर कभी नहीं आता है. वो फिर 3-4 साल बाद प्रिपरेशन ही करते रहते हैं, उसके बाद फिर अटेम्प्ट देते हैं. तो पहला जो सेट है जो एकदम बहुत अर्ली एग्जाम दे देता है विदाउट थिंकिंग, तो बाद में रिग्रेट करता है कि यार मैंने सोच के थोड़ा एग्जाम देता तो मेरा एक अटेम्प्ट बच जाता, या फिर मेरा एक अटेम्प्ट मतलब कम में ही सिलेक्ट हो जाता मैं. और जो दूसरा सेट है जो बहुत सालों बाद देता है, वो ईयर का रिग्रेट करता है कि मैंने थोड़ा अर्ली अगर दे देता मैं एग्जाम तो मैं थोड़ा अर्ली सिलेक्ट हो जाता. तो 1-1.5 साल का सिंसियर प्रिपरेशन यू हैव टू डू इट. यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी सब्जेक्ट्स. ऐसा नहीं कि आई लाइक पॉलिटी सब्जेक्ट और आई लाइक हिस्ट्री सो आई विल रीड हिस्ट्री ओनली, because there are equal distribution of marks to each and every subject. So there is no option for any subject. You have to study all these subjects. So जब एक से 1.5 साल का अगर प्रिपरेशन सिंसियर प्रिपरेशन होगा, तो you can think of giving that exam on that year. So if you want to give the exam in 2023, so you have to start preparing from this moment, and you have to give the sincere attempt. That is the only key. And third question, what was your third question? My third question was, ma'am, is it important to have something as a backup while preparing for UPSC? Yes, regarding a backup plan. See, backup plan होने का मतलब है बहाना होना. For me, मैं पर्सनली ये बताना चाहूंगी. If you are very sincere, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, that will itself is your backup plan. आप साथ में जॉब लेके आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते. करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, बट उनको भी पता है कि ये जॉब छोड़ के मुझे ये जॉब में जाना है. सो इट इज लाइक इफ इट रिक्वायर्स योर टाइम, एंड इफ यू हैव फाइनेंशियल सिचुएशन, इफ यू हैव पर्सनल सिचुएशन सेटल्ड इन योर लाइफ, आई वुड ऑलवेज से दैट यू गिव योर टाइम 1.5 years to this exam if you want to give UPSC or anything that you want to do. हमेशा क्या होता है, मेरे पास भी बैकअप प्लान था. तो मेरा MPhil JNU में हो गया था. मेरे जिस कोर्स में मुझे जाना था वहां 13 सीट्स अवेलेबल होती है, उसका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है. मैंने भी उसका एग्जाम दिया था एंड मैं सेलेक्ट भी हो गई थी, बट आई डिसाइडेड नॉट टू. आपको कुछ चीजें आपको चूज करनी पड़ती है, बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर होता है लाइफ में. सेम टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने MPhil करना चूज किया, PhD करना चूज किया, ऑल्दो उनको UPSC करना था. उन्होंने बोला अरे MPhil का सीट मिल गया है, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो ये जो पॉइंट था, जब मास्टर्स हम दोनों ने करी है, लेकिन हम लोगों को चूज करना था. UPSC उसको भी करना था, मुझे भी करना था.
एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, कैपेबिलिटी में मेरे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इंटेलिजेंस में मेरे में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है, लेकिन बिकॉज हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, तो आज भी मेरी वो फ्रेंड बोलती है कि अगर मैंने उस टाइम पे एक सीरियस अटेम्प्ट दिया होता, आई शुड हैव गिवन इट टाइम, तो शायद हो जाता, बिकॉज शी गॉट थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस नहीं हो पाया, एंड शी रिकॉग्नाइज कि इस फेलियर में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई नो कि शी इज इक्वली केपेबल, शी इज इक्वली गुड, एंड ये जो पॉइंट होता है डिस्टर्बेंस का, ये आपको प्लान बी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो उस ईयर मैंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, मैंने आरएएस का भी फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 2 बहुत सिंसियर अटेम्प्ट्स दूंगी, सीरियस अटेम्प्ट्स दूंगी, 2 में होता है तो ठीक है, नहीं तो आई एम गोइंग टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। एक ईमानदारी से 2 बार अटेम्प्ट देके मैं आगे बढ़ जाऊंगी अपनी लाइफ में। और जहां तक बैकअप की प्लान है, अगर आप सिंसियर हो अपनी लाइफ में, अपने आप आएगा आपके पास। आप अगर आप इच्छा रखते हो काम करने की, तो काम की कोई दुनिया में कमी नहीं है। सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि आपका बैकअप प्लान आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। बैकअप प्लान के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, गिव योर एग्जाम्स, आई एम नॉट सेइंग आप 1 अटेम्प्ट देते हो, 2 अटेम्प्ट देते हो, उसके बाद में आप सोचिए। अगर आप फाइनेंशियली सेटल्ड है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर पा रही है, अगर आपकी पास वो ऑप्शन नहीं है, तो आप एक जॉब के साथ में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लान ए हमेशा यूपीएससी ही रहेगा, प्लान बी हमेशा क्रॉस्ड ही रहेगा जब तक एक्टिवेट नहीं किया जाता है उसको। एंड मेरे भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के पीछे यही कारण था कि आई वाज लुकिंग फॉर बैकअप्स in my all these attempts. I was giving state exams, all those PSUs, and then bank exams. So first 3 attempts I was literally giving, in every month I was giving some other exam. So because of that I could not give my sincere attempts in those years. So you should give sincere try to the UPSC, and after that UPSC will definitely, if you are giving it seriously and very passionately, you are following all those text books and writing all these doing answer writing seriously, and then revising it, taking notes, then definitely you will see the results. थैंक यू गरिमा और भुवनेश जी, थैंक यू यशिका। मैं केवल एक क्वेश्चन ले पाऊंगा जो इस बैच के, क्योंकि 8:30 तक में हमको इसे खत्म करना है। हमने गरिमा और भुवनेश जी से भी 8:30 ही मैक्सिमम कहा था, और भी इस कार्यक्रम में जो गेस्ट हैं उनको भी 8:30 ही कहा था, मैक्सिमम लिमिट को छू रहे हैं। तो शिवांगी ने हाथ उठा रखा है। शिवांगी अपना वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी आपको वीडियो, am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल। वीडियो ऑन कर सकती हैं आप? Yes sir, on it sir. अच्छा ठीक पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? Good evening everybody. So my question is to Garima ma'am. Ma'am, the very first question, I have 2 questions basically. So first question is that what was your motivating factor, because we all know that this exam takes like 1 year. And the second one? Hello, I think she's disconnected, so I'll answer this question. So about motivation, there was a question in earlier also. मोटिवेशन एक गोली है जो आपको रोज उठ के लेनी होती है, ठीक है? मोटिवेशन मिलती है मार्केट में, आप लेके आ सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं तो सोल्यूशन हो जाएगा ना कि आप जाइए मार्केट से रोज मोटिवेशन खरीद के ले आइए। मोटिवेशन इज समथिंग विच यू गिव टू योर सेल्फ एवरी डे, when you tell yourself that I can do it, I will do it, and nothing is going to disturb me into achieving that. So मोटिवेशन का जहां तक पार्ट है, अगर आप अपने गोल्स के बारे में बहुत क्लियर हैं, टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ। विवेकानंद ने जो है हमारे, मैं उनको बहुत आइडियल मानती हूँ, तो उन्होंने ये बात कही है, अगर आपके लिए वो चीज जरूरी है तो वो आप करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है? आप नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है, और जो सीट जो आपको चाहिए थी वो कोई और लेके जा रहा है।
ये अगर आपको पता है कि, और ये फेयर कंपटीशन है, इसमें कुछ अनफेयर नहीं है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कोई और मेहनत कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू क्लेम द प्लेस दैट यू वांट। तो जहां तक मोटिवेशन की बात है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या मैं नेगेटिवली रिइंफोर्स्ड होती हूँ, क्या फियर से मैं मोटिवेट होती हूँ, क्या मुझे लगता है कि अरे जॉब नहीं मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं पॉजिटिव चीजों को देख के मोटिवेट होती हूँ कि ये जॉब तो मुझे चाहिए, दिस वर्क आई हैव टू डू इन माई लाइफ, दिस इज समथिंग विच इज मीनिंगफुल, विच इज इम्पैक्टफुल। तो उसके लिए आप मोटिवेट होते हैं। दोनों को कंबाइन करके यू फाइंड योर थिंग्स एंड पुट इट ऑन द वॉल। आप अपने सामने लिख दीजिए मुझे ये बनना है, एक पेपर पे लिख के सामने चिपका दीजिए। मेरे आज भी कमरे में 3 साल हो गया है, पर मेरी मम्मी ने वो पोस्टर्स नहीं हटाए हैं जो मैं चिपका के रखी हूँ, और वो जो जो बच्चा आता है उनको म्यूजियम की तरह दिखाती है, देखो ये ऐसे ऐसे, दिस इज हाउ मेरी बच्ची ने पढ़ाई करी है, क्योंकि उनको गर्व है उस चीज पे। आप भी अपने रूम के अंदर जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं, एक पेपर पे लिख दीजिए, जैसे मैं आई विल बिकम एन आईएएस, आई एम एन आईएएस, यू बिकम दैट पर्सन फ्रॉम टुडे एंड यू स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली फॉर दैट। तो मोटिवेशन ऐसा है कि आ जाएगा, डोंट वरी, बट आपको वो पसंद होना चाहिए, तो अपने आप आएगा, ठीक है। थैंक यू गरिमा, थैंक यू शिवानी। शाश्वत और एक और लोग हाथ उठाए हुए हैं, वे अपने क्वेश्चंस लिख कर हमें भेज देंगे। हमने ये अवसर पिछले 3 दिनों से दे रखा था आपको कि आप अपने क्वेश्चंस लिखकर भेजिए। तो यह भी एक लेसन है आज का कि आपने समय पर प्रश्न लिखकर नहीं भेजा, तो इस पाठ को भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप चाहते हैं किसी अवसर को स्वर्णिम अवसर में बदलना, तो समय पर काम करना शुरू कीजिए। और अंत में मैं धन्यवाद सर, कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं चाहती थी कि कुछ बच्चों ने पूछे थे, मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, 2 मिनट में उनको खत्म कर देती हूँ, तो उनको बुरा ना लगे, उन्होंने पहले भेज दिए थे मुझे क्वेश्चंस। किसी ने मुझे पूछा कि व्हेन डिड यू डिसाइड, आपने कब डिसाइड किया। डिसाइड करने के लिए पर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि आपको कैसा काम, मैंने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है। एग्जैक्टली मैंने 2016 23 अगस्त को डिसाइड किया है कि मुझे आईएएस का एग्जाम देना है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताती हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ विचार कर रही थी। जिस दिन आप एक्शन लेते हो उसी दिन आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, उससे पहले सिर्फ ख्याली पुलाव है। मैं आज भी आपको डेट बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे वो याद है। 23 अगस्त 2016 को मैंने बैठ के डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी देना है, और मैंने 8 जून 2017 को प्रीलिम्स दिया, मैं वो क्लियर हुआ। अक्टूबर में मैंने मेंस दिया, क्लियर हुआ, एंड उसके बाद में मार्च के अंदर मैंने अपना इंटरव्यू दिया, तो वो भी क्लियर हुआ। तो जिस दिन आप एक्शन शुरू करते हैं उस दिन आपका डिसाइड होता है, ठीक है। तो जिस दिन आप शुरू करेंगे उसी दिन आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा सब ख्याली पुलाव है। मल्टीपल टास्किंग के बारे में सर एक क्वेश्चन था कि आप कैसे मैनेज करते हैं। आई गेस मल्टीपल टास्किंग जैसा कुछ नहीं होता है। आई पर्सनली बिलीव हमेशा माइन्यूट टास्क होते हैं। मल्टीटास्किंग टाइम वेस्ट होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम्स को डिवाइड करते हैं कि 5 मिनट ये करना है, 5 मिनट वो करना है। 5 मिनट के अंदर 3 काम नहीं होते हैं, एक काम 5 मिनट में करके अगला काम 5 मिनट में होता है। तो साइमल्टेनियसली जब भी आपको करना है तो प्रायोरिटाइज करना होता है उसको। मल्टीटास्किंग जब भी आपको लगता है कि करना है, जब मैं स्पोर्ट्स खेलती थी तो मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचती थी, और जब मैं पढ़ाई करती तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचती थी। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द एक्टिविटी विच इज ऑन योर हैंड, और अपने आप मल्टीटास्किंग हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि इतना सारा कुछ करना होता है, आप उस टाइम पे उस चीज पे फोकस करेंगे, आपको अपने आप सक्सेस मिलेगी। एक टाइम पे 5 करने के बजाय 5 चीजों को थोड़ा थोड़ा टाइम लेके प्रायोरिटाइज करके करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि 3 चीजें आपके पास है, कम्युनल राइट्स, एक इंपॉर्टेंट एमएलए मीटिंग और स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, आप किसको चूज करेंगे। आई थिंक लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो जहां कम्युनल राइट है हम वहां जाएंगे, जहां ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा है वहां हम पुलिस पर्सनल को भेजेंगे, और जहां तक हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात है वो हमेशा कोऑपरेटिव होते हैं। ये जो बाहर से परसेप्शन है ये बहुत गलत होता है कि वो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कभी भी किसी की जान को रख के नहीं करते, वो एक्चुअली लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को उनके पर्सपेक्टिव को समझ के लेना होगा। अगर फोन करके बोलूं कि सर राइट हो रही है यहाँ पे और मुझे जाना है, तो मुझे हमारे मुख्यमंत्री साहब भी कभी मना नहीं करेंगे।
तो आप ये चीजों को, ये क्वेश्चन पूछा तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सर्विसेज को लेके ऐसा होता है कि हमेशा नेगेटिव ही दिखाया जाता है बाहर से, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। ठीक है, स्टडी पैटर्न का था, मैंने बताया कि ऑलमोस्ट आपको 6 से 8 घंटे आपको आदत हो जाती है व्हेन यू गिव फॉर एग्जाम। बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वैसे करनी है। इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप मेंस क्लियर कर लीजिए, मैं यहीं पे हूँ, प्रणय सर भी यहीं पे है, मेरा नंबर ले लीजिएगा जिस दिन इंटरव्यू में नंबर आ जाए, मैं आपको गाइड कर दूंगी, आप टेंशन मत करिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रू भी हैं जो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं। मुझे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या औरत आदमी से अच्छी है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये, बट आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना होता है। मेरा आंसर था कि नहीं, सब बराबर है, सबकी थोड़ा सा रोल अलग है, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसके अलावा हम कल्चरल जेंडर रोल्स जो क्रिएट करते हैं उससे डिफरेंसेस आते हैं। सो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। आप बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट है जो आप पढ़ सकते हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एंड वो आपको मोटिवेट करेगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा आपके लिए। बट इंटरव्यू एक बहुत छोटा पार्ट है, 275 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 2075 मार्क्स। तो आप ये टेंशन मत करिए कि क्या होगा, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मुझे इंग्लिश नहीं आता या मेरा भाषा में नहीं है, तो ऐसी चीजों के बारे में अभी मत सोचिए, सब हो जाएगा। मैंने कन्नड़ा एक लैंग्वेज है जो 1 साल में सीख ली है, तो इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज जो आप पढ़ाई कर रहे हो बचपन से, सीख ही लोगे, आप सब टैलेंटेड बच्चे तो सीख ही लेंगे। ठीक है, पेरेंट्स के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी, अगर आप जो भी बच्चे हैं और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए, लेट द किड डिसाइड। उसको सही नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि बेटा ये नेगेटिव्स हैं, और जब भी मिस्टेक होती है तो आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। गलती करने के लिए पनिशमेंट होती है एक, और एक होता है कि आपको उसको सिखाना उस चीज से। गलती करने दीजिए, तभी उस बच्चे को पता चलेगा कि उसके लिए गलत क्या है, सही क्या है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझसे जो गलती हुई मेरा बच्चा वो गलती ना करे, हम बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि अरे बच्चा आर्ट्स ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, इसका क्या करियर रहेगा, ठीक है आर्ट्स ले लिया, कोई नहीं, शादी करवा देंगे बाद में। वो कोशिश करने के लिए उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम उसको मिस्टेक करने की स्पेस नहीं दे रहे हैं। और जितना लर्निंग ट्रायल और एरर मेथड में, उतना कोई भी मेथड में नहीं है। फेलियर की जहां तक बात है, मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम था टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ। तो फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं है, तो लेट किड्स डिसाइड। 2 साल चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज, दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। 2 साल चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन से पहले शादी नहीं करनी है। ग्रेजुएशन से पहले तो किसी के भी शादी और सगाई नहीं करना है। ग्रेजुएशन है, जब तक जॉब नहीं लगता तब तक नहीं करनी है। एंड जब तक स्पेसिफिकली फॉर ऑल द गर्ल्स जॉब लगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके, देन यू डू ऑल दिस, देन यू गो फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स। तो एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है, 2 साल चले जाएंगे बच्चे के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोशिश करने दीजिए, क्योंकि बहुत लाइफ बड़ी है, बहुत लाइफ बड़ी है। गलतियां बाद में करने की बजाय जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। और कंपेयर नहीं करना है बच्चों में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कंपैरिजन, प्लीज, कंपैरिजन कभी भी किसी के डेवलपमेंट ऐसा कर रहा है, उनका हाँ। बच्चा ऐसा कर रहा है। हमारे पेरेंट्स ने भी किया, आज भी करते हैं, आईएएस बनने के बाद भी करते हैं, हाँ। कि देखो उनका जो बेटा आईएएस है वो ऐसा काम कर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट में। तो जस्ट ये पॉइंट है कि कंपैरिजन से कभी कोई ग्रोथ नहीं करता है, कंपैरिजन से नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो हर बच्चा 5 अंगुलियां 5 तरीके के वो होते हैं, तो लेट देम ग्रो, लेट देम डिसाइड। उनको अपनी लाइफ के लिए जवाबदारी देना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मैंने सारे कर दिए। यहाँ पे प्रेशर और अनसपोर्टिव पेरेंट्स की बात थी, तो प्रेशर के बारे में मैं 2 मिनट लूंगी। रिसेंट इंसिडेंट है, हमारे यहाँ पे 125 लोगों की जान की, लाइक ऐसे कहते हैं, एक पॉइंट आ गया था जहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, और हम लोगों को ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि 14 साल पुराना सिस्टम था जो चलाना था। ये डिसीजंस जो लेने थे हम लोगों को बहुत ही आधे 1 घंटे के अंदर लेने थे, कि क्या हम ये करें, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्या ये चीजें कर पाए। उसी के साथ साथ में बहुत सारा प्रेशर, मीडिया बाहर खड़ी थी। तो हम लोगों को ये जो वर्क स्टाइल है, ये जो लाइफ है, इसके अंदर हम डिसीजन ना ले तो लोग, पीपल डाई। हम ऐसी पोजीशन में हैं जहां हमारे पास बहुत जवाबदारी होती है। तो ये चीजें आप जब सीखते हैं, जब आपको पुट किया जाता है उस सिचुएशन में। मैंने नहीं सोचा था कभी भी, या भुवनेश जी ने भी कभी नहीं सोचा था कि क्या हम ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे। बट जब हमारे ऊपर ये प्रेशर आया, जब हम इस सिचुएशन में आए, तो कहते हैं कि सोना बाहर निकल के आता है जितना उसको उबाला जाता है। वी वर एबल टू टेक अ डिसीजन। हमारी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, एंड वी वर एबल टू सेव एवरीबडी। और हमने 8 घंटे लोकली मैनेज करके सिचुएशन को सॉल्व किया।
तो आप प्रेशर्स को नेगेटिवली ना ले, पॉजिटिवली ले। और अनसपोर्टिव फैमिली और फ्रेंड्स की जहां तक बात है, जो फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, पहली बात। और जहां तक पेरेंट्स की बात है, उनमें एक ओपिनियन होगा, उनका एक वो होगा, उनसे बात करके देखिए, कम्युनिकेट करके देखिए। मैं जानती हूँ इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है कम्युनिकेशन की, हम लोगों को सिखाया ही नहीं जाता है कि कम्युनिकेशन एक है, लेकिन अब हम चेंज हो रहे हैं। तो आपको प्यार से बताना होगा कि देखो पापा, देखो मम्मी, मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, आप अगर मेहनत करेंगे, अगर आप सिंसियरली मेहनत करेंगे, आपके पेरेंट्स अपने आप समझ जाएंगे कि अब मेरे बच्चे को इस चीज की जरूरत है, वो जो कर रहा है वो अपने मन से, इच्छा से कर रहा है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो और बैठे बैठे रोज अगर आप बहाना मार रहे हैं तो नहीं होगा। आपको उनको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स 3 महीने तक मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी जब मैं तैयारी कर रही थी। आई केम बैक होम प्रिपेयर करने के लिए, बट जैसे ही उन्होंने मुझे 3 महीने कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हुए देखा, पूरे 1 साल तक घर में कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता था मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। एंड मेरे पेरेंट्स बहुत सोशल हैं, बहुत बातें करते हैं, उन लोगों को लोग चाहिए होते हैं, बट उन्होंने समझा, मेरी सिचुएशन को देख के समझा। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं उसमें आप अच्छी एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो ये दोनों साइड की बात है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को आए हैं, जो मैंने डील कर लिए हैं सर। वी कैन गो फॉर। तो ये आज ये प्रूव होगा कि एलकेएस के सिंसियर स्टूडेंट्स कभी अपना होमवर्क कंप्लीट करना नहीं छोड़ते हैं, पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। थैंक यू भुवनेश जी। मैं सीधे कंक्लूजन पर आता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा भुवनेश जी, राहुल जी और राम जी को। आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। ये तीनों तो हमारी बेटियां हैं, हमारे लिए वक्त निकालेंगी, लेकिन आप तीनों ने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और गरिमा ने मुझे बताया कि आज मुख्य सचिव जी की मीटिंग थी 4:30 बजे से, और आप दोनों को उसमें जाना था। और मैं जानता हूं कि चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग कैसी होती है। आपने स्कूल के लिए वहां से अपने को फ्री किया। हम सब आपके लिए शुक्रगुजार हैं और क्लैप करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आप, विद्यालय आपका है, आपको जब समय मिले और जब सामान्य परिस्थितियां हो, कभी भी राजस्थान आए, स्कूल जरूर आए। ये निवेदन है हम सब की ओर से, पूरे स्कूल की। जरूर सर। थैंक यू। चेतना और राम, मीनाक्षी और राहुल, आप दोनों के लिए भी यही आग्रह है। आप दोनों ने भी समय निकाला, और आप दोनों नहीं आते, अगर ये तीनों कपल यहाँ बैठे हुए नहीं होते, तो आज का ये कार्यक्रम तो होता, लेकिन उसकी आत्मा गायब होती, उसमें प्राण नहीं होते, उसमें आत्मीयता नहीं होती, उसमें जुड़ाव नहीं होता। आपने इसको, इस विद्यालय को या इस औपचारिक कार्यक्रम को एक आत्मीय कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड झगड़ावत सर, और मैं जब कह रहा हूं झगड़ावत सर, तो आप समझ सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी। लेकिन स्कूल से उनका अटैचमेंट देखिए कि वे 6:20 से इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, और अभी 6:36 हो रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। Pranay sir, I will just interrupt you. I have committed the mistake, and I thought that if I will not disclose it, I will not have to sound sleep. Actually, I was Chetana and Meenakshi. I have not seen you. I have seen your better half. So I have not recognized you. That's why I was talking about Garima. So really, I was just feeling I must have the word of appreciation for you both also. So it was great to see Chetna, because you both has gone through commerce, so I have got different feel with you. And Meenakshi, for your knowledge, still in the evening there is a crowd outside my office. So this tradition we are still maintaining. So this I thought of giving you the vote of thanks from my part. And really is a lovely session. God bless you and keep growing and serve the society, which is very important. Thank you. थैंक यू सर। और एक धन्यवाद जो बनता है, वो धन्यवाद बनता है जितने पेरेंट्स इस कार्यक्रम में हैं। मैं आप सब, गरिमा, भुवनेश जी, चेतना, राम, राहुल और मीनाक्षी, आप सबको इसलिए भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे परिवार को 23 राज्यों तक फैलाया है। लगभग 23 स्टेट के और कुछ देश के भी
थाईलैंड के, दुबई के पेरेंट भी बैठे हुए हैं इसमें और बच्चे। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि आप जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनसे उनका जुड़ाव, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उनकी उत्सुकता, ये सब कितनी अच्छी चीज है। मैं उन सब अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं, उन विद्यार्थियों को और स्कूल के जो टीचर्स इसमें शामिल हैं, निम्बाहेड़ा स्कूल के, झालावाड़ स्कूल के, उन सबको और सभी को धन्यवाद। भविष्य में भी हम ऐसे रोचक और लाभदायक कार्यक्रम करते रहेंगे। बात खत्म नहीं हुई है और अंत में मैं कहूंगा कि शो मस्ट गो ऑन, ये चलते रहना चाहिए और ये चलेगा तब जब आप तीनों जो कपल आए हैं आप स्वयं जुड़े रहें और औरों को भी जोड़ें। ये स्कूल आपका है, आपके लिए हम पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। आप जब भी इधर आए तो स्कूल आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अब यही आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।